Hello students, today we'll be reading History and Civics Class 8 Chapter 1, that is a period of transition. Transition means change, so let's study what it's all about. History is mainly classified into three periods by historians. There are three periods we already know in which history is divided, that is ancient, medieval and modern. Each period has unique features such as social, political and economic that makes it different from other periods. All these periods differ from country to country. तो हम जानते हैं कि उसका अलग अलग यूनिक फीचर्स रहता है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और हर कंट्री का एक दूसरे से अलग रहता है फीचर्स. द मीडिएवल पीरियड इन यूरोप, ऑल्सो नोन एज द मिडिल एजेस. What is the medieval period in Europe called? Middle Ages. Lasted from the 5th to 15th century. So almost near around 10 centuries it had lasted in Europe. From the early 14th to late 16th century, the Renaissance and the Age of Discovery traditionally marked the transition of Europe from the Middle Ages to the Modern Age. तो हम देखते हैं कि मिडिल से मॉडर्न में जब चेंज हो रहा है, जब ट्रांजिशन हो रहा है, तो these are marked by the Renaissance and the Age of Discovery. The Renaissance brought with it new ideas and trends in literature, arts and science. तो ये एक चेंज लेकर के आया जो रेनेसा था इन द field of literature, arts and science. Driven by the desire for wealth, adventure and knowledge, this transition was manifested in change in thinking and ideology, and the Protestant Reformation giving birth to which brought conflict and cultural changes. तो हम देखते हैं कि एक चेंज आया ना ही सिर्फ लिटरेचर, आर्ट और साइंस में, बल्कि नए आइडियाज़ और थिंकिंग और आइडियोलॉजी में भी चेंज लेकर के आया. Beginning in 1750, the Western societies also began transforming as a result of the Industrial Revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही आया तो हम देखते हैं कि एक सोसाइटी में भी, वेस्टर्न सोसाइटी में भी चेंज आया. बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट यूरोप, सो इट्स showcases about the Western societies. New inventions and discoveries allowed the manufacture of goods quickly and efficiently on a large scale. New forms of transportation and communication connected people as never before. These discoveries and inventions of the modern age helped to modernize the lives of people. So we know that with the help of industrial revolution, there were new inventions, discoveries, and those old age kind of equipments were not used anymore. There were new forms in transportation, communication, and there were more discoveries, which shows that there was a transition, that is the age of transition. It brought far-reaching changes in Europe and the whole world, about which we will read in this class. So we have just read the introduction, we'll proceed further. Primary and secondary sources. Primary sources are the evidence that historians use to know about events, people and their everyday life in the past. The study of primary sources is crucial to the study of history as they provide first-hand and original account of the past. तो प्राइमरी सोर्स का मतलब ये है कि डायरेक्ट हिस्टोरियंस उससे डील करते हैं और वो कोई भी स्टडी के लिए बहुत क्रूशियल है, जो कि रिलेट करता है इवेंट्स से रिलेटेड, पीपल और एवरीडे लाइफ जो कि पास्ट में था. तो ये क्या है, फर्स्ट हैंड रहता है, पहला रहता है और ओरिजिनल अकाउंट ऑफ द पास्ट रहता है. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ओरल हिस्ट्रीज, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स सच एज न्यूज़पेपर्स, सेंसस, रिकॉर्ड्स, डायरीज, journals and inventories are primary sources because they directly provide us the knowledge or the evidence about the history. Secondary sources का मतलब ही हम लोग को समझ में आता है कि सेकेंड में है, वो फर्स्ट हैंड सोर्सेस नहीं है. Are any account, record or evidence derived from interpreting and analyzing an original or primary source. Most books in the history section of a library are secondary sources. सेकेंडरी इसीलिए है कि हम लोग प्राइमरी सोर्स से कुछ एक चीज़ डिराइव कर रहे हैं, कुछ एक समझ को डिराइव कर रहे हैं और उसके बेसिस में हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक सेकेंडरी सोर्सेस है. ओके, सो वी हैव read about this word Renaissance. Now we'll know what it actually means.
The Renaissance was a cultural movement that began in Florence, Italy. It began in Italy. In the late Middle Ages that we are reading about medieval, तो late, middle के last part में ये evolve हुआ था. ये क्या है? एक cultural movement है. This movement influenced, we have already heard about it and learned, literature, philosophy, art, politics, science and religion. It saw a revolution in the intellectual, social and political domains. However, it is also known as the artistic developments. So now we'll learn about the causes. How did Renaissance occur? What were the causes? The following were the major causes responsible for the Renaissance. Fall of Constantinople. In 1453 CE, the Ottoman Turks attacked and occupied Constantinople, which was a famous center of learning. Many Greek scholars fled and took shelter in Italy. As a result, University of Florence, Venice and Milan in Italy became important centers of education. तो हम लोग देखते हैं कि fall of Constantinople. What was Constantinople? It was a place which was attacked by the Ottoman Turks, and then it was a famous center of learning. Like बहुत सारे learned person वहाँ पर रहते थे. और जब वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ग्रीक लोग, स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे ग्रीक्स थे, दे फ्लेड, क्योंकि टर्क्स लोग आ गए थे, अटैक किए थे, तो दे फ्लेड टू इटली. एज ए रिजल्ट, बिकॉज दे वर लर्नड पर्सनस, तो उनके हेल्प से क्या हुआ, रेनेसांस जो था वो इटली में आया. एंड देयर वर मैनी यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश्ड as a center of education. Rise of a new nobility. An increase in the trade led to the emergence of a new class of nobles, who were actually merchants and not nobles by birth, who patronized learning. तो हम लोग बोलते हैं कि एक नए क्लास ऑफ पीपल का हम लोग देखते हैं राइज हुआ. कैसे? इन लोग ट्रेड करते थे बट दे वर लर्नड. सो वी सी दैट देयर वॉज अगेन ए पैट्रोनेज फॉर लर्निंग. तो उन लोग मदद करते थे, उन लोग हेल्प करते थे कि जो लर्निंग है वो इंक्रीज़ हो. एज ए रिजल्ट रेनेसांस टुक इट्स बर्थ. Discovery of new routes. Due to the fall of Constantinople, trade was hampered. In order to ensure profitable trade, new routes were discovered along with new lands. These voyages of discovery opened up new centers of trade, which also became the sites of cultural exchange. तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल से ट्रेड का रास्ता जाता था, लेकिन जब अटैक कर लिए टर्क्स लोग, तो वो सब ट्रेड का रास्ता को दे क्लोज्ड इट. इन दैट केस वी सी कि नया रूट लोगों ने एस्टेब्लिश किया, और उससे क्या है, दूसरे लोगों से मेल मिलाप हुआ, और देयर वॉज डिस्कवरी एज वेल एज ट्रेड भी फ्लॉरिश हुआ, नया सेंटर्स ऑफ ट्रेड था. एंड देयर वर कल्चरल एक्सचेंजेस, मतलब एक इसका कल्चर हम लोग अपनाएंगे, हमारा कल्चर वो अपनाएगा, तो देयर वॉज एक्सचेंज ऑफ कल्चर विच ऑल्सो लेड टू द इंक्रीज और द बर्थ ऑफ रेनेसांस. Crusades or the holy wars to save Christianity from the onslaught of Turks brought Europe in close contact with the Arabs, who had made great advancement in the field of science and philosophy. तो क्रूसेड्स का मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी को सेव करने के लिए, वी नो इन वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली इट्स क्रिश्चियनिटी, so to save them from the onslaught of Turks, we have already known in Constantinople they had attacked the Turks. तो उनसे बचाने के लिए यूरोप क्या किया, अपना एक नया रूट देखा, नया कॉन्टैक्ट देखा, किसके साथ, अरब्स के साथ. और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि दे वर ऑलरेडी वेरी एडवांस्ड, दे हैड मच ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड फिलोसफी. देयरफॉर रेनेसांस ऑल्सो टुक प्लेस. Invention of the printing press. The invention of the printing press by Johannes Gutenberg accelerated the Renaissance movement. Printing helped in the spread of ideas to different parts of Europe. Translation of the Bible and other important works made people aware, and they now began to question the validity of the age-old practices and beliefs. तो हम लोग देखते हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हुआ with the help of this man Johannes Gutenberg, तो हम लोग देखते हैं कि बाइबल प्रिंट होने लगा और बहुत सारे जगह पे जाने लगा, बहुत सारे बुक्स और मैगजीन्स प्रिंट होने लगे, जिसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि दे क्वेश्चन देयर एज ओल्ड बिलीव्स. दे वर नॉट ब्लाइंड बिलीवर्स बट दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, विच ऑल्सो ओपन देयर इंटेलेक्चुअल माइंड, एंड हेंस रेनेसांस टुक प्लेस. So these are the causes: fall of Constantinople, rise of a new nobility,
discovery of new routes, crusades, invention of the printing press. These are the causes of Renaissance. Features, क्या उसका फीचर्स है, जैसे हम लोग देख करके जानते हैं इसका ये फीचर है, इसके लंबे बाल हैं, इसके ये हाइट इसका छोटा है, ये फीचर्स है, वैसे ही हम लोग देखते हैं रेनेसांस का क्या क्या फीचर्स हैं. सो द नंबर वन फीचर इज़ ह्यूमैनिज्म. In the medieval period, everything revolved around religion. So, religion played an important role in the medieval period. People were taught not to think about the world but to concentrate on God. However, the Renaissance thinkers believed that human life in this world was of great importance. They came to be known as humanists because they shifted the focus from godly affairs to human affairs. Francisco Petrarca is called the father of humanism. We can underline this, his name. So we know कि पहले टाइम में क्या था, विश्वास करते थे सिर्फ रिलीजन पे, बट देयर वर दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टू बी नोन एज ह्यूमैनिस्ट. दे बिलीव्ड कि एक एग्जिस्टेंस, एक ह्यूमन का भी इम्पॉर्टेंट है, नॉट अलोन गॉड. सो दे गेव इम्पॉर्टेंस टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स. ये क्या किए, फोकस शिफ्ट किए गॉडली अफेयर्स से ह्यूमन अफेयर्स. और फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म जो प्रपोज किया ह्यूमैनिज्म को, उसका नाम है फ्रांसिस्को पेट्रार्का. देन रैशनलिज्म. The Renaissance thinkers were very rational in their thinking and approach. According to them, every thinking has a reason and everybody has the right to reason and question. They refused to accept anything blindly, even the authority of the church. तो हम लोग देखते हैं कि रैशनलिज्म आया. रैशनलिज्म एक फीचर है रेनेसांस का, बिकॉज दोज हु बिलीव्ड इन रेनेसांस दे बिलीव्ड इन रैशनैलिटी. कुछ भी जो बोलो हम वो हाँ बोल देंगे, ऐसा नहीं है. हम उसको सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे कितना सच्चाई है, देन वी विल बिलीव. एंड कुछ भी चीज़ को अगर हमें डाउट है तो आजकल क्या बोलते हैं हम लोग, डाउट को पूछो. सो देयर शुड बी ए रीज़न होना चाहिए, राइट टू रीज़न, कि हाँ मैडम ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ. तो द स्टूडेंट्स हैव द राइट टू नो. एंड देन क्वेश्चन, ऐसा कैसे होना चाहिए, कैसे क्यों होगा, वॉट, वाई, हाउ. सो दे क्वेश्चन. So that's why we know that the second feature of Renaissance is rationalism. Scientific spirit. Scholars endeavored to find scientific explanation of things around them. This approach was based on observation, experimentation and conclusion. Scientific spirit आ गया कि हम लोग साइंस में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हाँ अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा हो रहा है कि नहीं. ओनली व्हेन वी एक्सपेरिमेंट, ओनली व्हेन वी ऑब्जर्व, देन वी कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन. तो उन लोग क्या है, एक प्रोसेस को अपनाने लगे. ये नहीं कि जो बोलो हम ब्लाइंडली उसको बिलीव करें. देयर शुड बी ए साइंटिफिक रीजनिंग आफ्टर वॉट एवर हैज़ बीन सेड. स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेनेसांस. पीपल नाउ बिगेन टू क्वेश्चन. पीपल क्या किए, क्वेश्चन करने लगे, इंक्वायरी करने लगे. Discover knowledge and explore the unknown. Such inquiry led to voyages of discovery and explorations. This resulted in the discovery of new lands. तो क्या हुआ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आया. ये क्यों, कैसे, क्वेश्चन जब करने लगे तो जो अननोन है, इसके पार क्या है, उसके आगे क्या है, वो क्या कि अननोन को डिस्कवर करने की जब इच्छा आने लगी तो वो क्या कि और ज़्यादा नया लैंड्स को डिस्कवरी हुआ, और ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज हुआ. रियलिज्म. Along with humanism and the spirit of inquiry, realism was visible, particularly in paintings. Artists painted the actual beauty of the world and the grace of real men and women. तो realism हम paintings में देखते हैं कि artist started painting what the actual surroundings were. ये नहीं कि कुछ imagine करे और art बनाने लगे. So there was realism. So now we know the features of Renaissance, that is humanism, जो ह्यूमैनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. रैशनलिज्म, रैशनल बनो, क्वेश्चन करो. फिर साइंटिफिक स्पिरिट, देयर शुड बी ए साइंटिफिक बैकग्राउंड टू एवरीथिंग सेड. स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जो बोल दिए वो नहीं, हम इंक्वायर करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे. रियलिज्म, रियलिटी वॉज गिवन इम्पॉर्टेंस. दीज आर द फीचर्स. नाउ वील लर्न अबाउट द इम्पैक्ट. द रेनेसांस मूवमेंट ushered in a new era of literature. We have known literature flourished. For the first time, scholars discarded Latin language, which only a few people could understand, and took writing in the local languages. Latin language जो था ज़्यादातर लोग, स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग यूज़ करते थे, लेकिन
बहुत कम लोग उसको समझ पाते थे, कॉमन लोग। तो नाउ दे डिस्कार्डेड दैट, और लोकल लैंग्वेज, अगर मैं उड़ीसा में हूँ तो मैं उड़िया लैंग्वेज यूज़ करूँगी, अगर महाराष्ट्र में हूँ तो मैं मराठी यूज़ करूँगी। तो क्या है, लोकल लैंग्वेज यूज़ करने के द्वारा लोग, जो कॉमन पीपल थे, उन लोग समझ पा रहे थे। Some of the famous scholars of the Renaissance and their major works are given in the table below. यहाँ हम देखते हैं important scholars and their major works. Dante had written the Divine Comedy. Machiavelli had written The Prince. Erasmus had written The Praise of Folly. William Shakespeare had written quite a few books like Julius Caesar, The Merchant of Venice, and Macbeth. John Milton had written Paradise Lost. Geoffrey Chaucer had written the Canterbury Tales. So we have known about some scholars who had written some works that was an impact of Renaissance. The Renaissance movement also resulted in a revival of art. The city of Florence in Italy, we have already learned from where the Renaissance started, produced great artists and painters such as Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raphael. These were some great artists. Early Renaissance artists painted their pictures based on religious themes taken from the Holy Scripture. Walls of churches and palaces were covered with biblical events and characters. Later, artists started painting on secular themes from Christian literature. Portrayal in the pictures became more realistic. Artists closely studied the human form, its anatomy, expressions, movements and positions. तो हम देखते हैं कि मोस्टली उन लोग क्या करते थे, बाइबल से रिलेटेड या होली स्क्रिप्चर से रिलेटेड ही अपना इंस्पिरेशन था. बट स्लोली विद द एडवांसमेंट ऑफ रेनेसांस वी सी दैट पीपल स्टार्टेड बेस्ड ऑन रियलिज्म, जो उनके आसपास में था वो उस चीज़ को उन लोग पेंट करना शुरू किए. दे स्टार्टेड पेंटिंग्स गिविंग इम्पॉर्टेंस टू एनाटॉमी, कैसे बैठा है, क्या मूवमेंट है, क्या एक्सप्रेशन है. सो द आर्टिस्ट स्टार्टेड गिविंग more importance to realism. Sculptural themes also acquired a humanist and secular character. पहले religion से हम देखते हैं secular character, कोई religion based नहीं, लेकिन nature based या जिसको जो लग रहा है वो उसके basis में paintings और sculpture करने लगा. Sculpture मतलब खुदाई का काम, जैसे हम लोग एक पत्थर लेंगे उसमें हम लोग sculpt करके एक चेहरा बना देंगे, उसको हम लोग sculpture बोलते हैं. The sculptors beautifully captured the grace and elegance of the human body. Now, religion is not important. Human body, humans are important. Michelangelo's statue of Pieta in Rome remains a famous example of Renaissance sculpture. Michelangelo हम देखते हैं कि वो एक पेंटर था Renaissance के टाइम का. Here the picture is given, and Leonardo da Vinci. These were the great painters that were born during the time of Renaissance. The important features of the Renaissance architecture were rounded arches, imposing domes and tall Grecian pillars. This came to be known as Greco-Roman style of architecture. Architecture मतलब कैसे टाइप का स्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स बनेगा. तो हम देखते हैं कि डोम्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा डोम जैसे बना रहेगा, इसको हम डोम बोलते हैं. राउंड आर्चेस होकर के और टॉल पिलर्स. ग्रीक लोग का क्या था, हम लोग जानते हैं कि ग्रीक लोग क्या हुआ, फ्लू अवे फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल जब टर्क्स लोग अटैक किए, और वो आ करके कहाँ पर बस गए, इटली में, फ्लोरेंस में. तो हम लोग देखते हैं ग्रीस का भी जो था टॉल पिलर्स का स्ट्रक्चर और डोम जैसा स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग देखते हैं. एक स्टाइल आया, ये रोमन्स लोग का होगा स्टाइल, ये ग्रीक्स. तो ये दोनों मिला करके जो स्टाइल आया आर्किटेक्चर का, उसको हम बोलते हैं Greco-Roman style of architecture. So these are the impact. कैसे स्कल्पचर में इम्पैक्ट किया रेनेसांस, कैसे लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज आने लगा और लोकल लोग के लिए वो एक इम्पैक्ट पड़ा. फिर पेंटर्स के लिए स्कल्पचर में और आर्किटेक्चर में वी सी एन इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसांस. Okay, now we'll learn about age of discovery and explorations. We have already known that so many things, so many lands were explored. Unknown जो था, जो लोगों से अनजान था, वहाँ लोग आगे बढ़ने लगे और unknown को explore करने लगे. The Renaissance movement fostered a spirit of adventure कि हम अरे बैठे बैठे बोर नहीं होते हैं, चलो
एक्सक्यूज़ मी, चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या होगा, चलो वहाँ नदी है, चलो जाके देखते हैं उसमें क्या होगा। तो एडवेंचर आने लगा, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आने लगा लोगों के माइंड में, अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द टर्क्स कंट्रोल्ड द सी एंड लैंड रूट्स टू द ईस्ट। तो हम देखते हैं ईस्ट की तरफ में टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को क्योंकि कैप्चर किया था, तो सी और लैंड रूट को उन लोग क्या किए, बंद कर दिए, तो ट्रेड और पॉसिबल नहीं था। दस ए क्लास ऑफ एक्सप्लोरर्स, एक्सप्लोरर्स मतलब जो एक्सप्लोर करते हैं, केम टू द फोर फ्रंट एंड new lands were discovered. These European explorers were searching for fame, glory and wealth. They traveled to the unknown lands. उन लोग unknown lands में travel किए and seas facing hardship. Their discovery took them to the land east of Europe, to India, China and the New World America. तो हम लोग देखते हैं कि जब वो रास्ता बंद हो गया, ट्रेड नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, एक्सप्लोरर जो लोग एडवेंचर चाहते थे उन लोग क्या बोले, चलो हम लोग दूसरा रास्ता खोजते हैं, कहीं ना कहीं से तो एक कनेक्शन होगा। तो वो क्या कि दूसरा रास्ता खोजे ताकि उससे हम लोग ट्रेड कर पाएँ, और दूसरी जगह जहाँ ऐसा भी माना जाता था कि ऐसा दूर दूर देश में बहुत सोना चांदी है, तो वो चीज़ के खोज में भी, वेल्थ के खोज में, फेम के और ग्लोरी के खोज में नया डिस्कवर हुआ लैंड सब, जैसे कि इंडिया, चाइना और अमेरिका, जो कि पहले कभी था ही नहीं लेकिन न्यू डिस्कवरी था। द मेन मोटिव्स ऑफ दीज एक्सप्लोरर्स वेर एज फॉलोज। तो एक्सप्लोरर लोग क्यों एक्सप्लोर किए, क्या क्या रीजंस था, देखते हैं। वेल्थ, जैसा कि हमने पढ़ा, गोल्ड, सिल्वर एंड स्पाइसेस। हम लोग देख सकते हैं इंडिया में ये तीनों पाया जाता था उस समय। इंक्रीजिंग पावर इन यूरोप, यूरोप का धीरे धीरे क्या हुआ, पावर इंक्रीज होने लगा। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेड, जब हम लोग देखें ट्रेड का और कहीं से कोई रास्ता नहीं है तो इन लोग को एक नया रास्ता निकालना पड़ा। स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, इन लोग का ये मानना था कि हम लोग जहाँ भी जाएंगे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे, तो एक नया एरिया जा करके हम लोग क्या है वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएंगे। बिल्डिंग यूरोपियन एम्पायर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या है, दूसरी जगह जाकर हम लोग दूसरा एम्पायर बनाएंगे, दूसरी जगह बनाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि नया एम्पायर, यूरोपियन एम्पायर बनेगा, जिसके थ्रू में उन लोग का ग्लोरी और फेम आएगा। द यूरोपियन एक्सप्लोरर्स प्रिडोमिनेंटली केम फ्रॉम 4 कंट्रीज़, 4 कंट्रीज से एक्सप्लोरर्स आए थे, जैसे कि इंग्लैंड, पोर्तुगल, स्पेन एंड फ्रांस। दीज वेर द 4 कंट्रीज फ्रॉम वेयर द यूरोपियन एक्सप्लोरर्स मोस्टली केम। The growth in geographical knowledge and the invention of new scientific instruments such as the mariner's compass and adjustable sails made exploration much easier. We already know कि रेनेसा के हेल्प से क्या हुआ है, उनका इंटेलेक्चुअल जो है स्पेस वो खुल गया है, जिसके हेल्प से हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारा जोग्राफिकल नॉलेज पाया, कहाँ किस दिशा में जाना है, कौन सा दिशा में जाने से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर क्या जोग्राफिकल फीचर्स है, कहाँ सी है, कहाँ माउंटेन है, तो वो उन लोग को ज़्यादा नॉलेज आने लगा। मैरिनर्स कंपास, जिसके हेल्प से क्या होता था, बोट से या फिर शिप से जब एक इंसान दूसरी जगह सेल कर रहा है तो मैरिनर्स कंपास के द्वारा उन लोग क्या होता है, डायरेक्शंस को उन लोग पता लगा सकते थे। एडजस्टेबल सेल्स मेड एक्सप्लोरेशन मच ईजियर, जिसके थ्रू से एक्सप्लोरेशन और आसान हो गया। Reformation. The Reformation of the 16th century is one of the greatest events in the history of the world. Reformation comes from the word reform, which means making change in something to make it correct and acceptable. Reformation. ये क्या है, रिफॉर्म का मतलब क्या है, किसी एक चीज़ को, जैसे ये अगर एक पेंसिल है, मैं इसको क्या करूँगी, एक चेंज करूँगी, इसको अगर मैं छोटा बनाना चाहती हूँ तो मैं कटिंग करूँगी, इसको चेंज करूँगी, अगर मेरे लिए ये बहुत लंबा है तो मैं क्या है उसको कटिंग करूँगी, एंड मेक इट करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल। इतना मोटा पेंसिल होगा तो मैं कभी नहीं लिख पाऊँगी, तो इसको क्या है मैं छोटा करूँगी, पतला करूँगी, जिसके हेल्प से मैं ईजीली उसको एक्सेप्ट कर पाऊँगी। तो रिफॉर्मेशन का मतलब यही है, एक चेंज जो कि करेक्ट होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। The act of changing a religious, political or social institution or a system can be called as reformation. Reformation हम लोग इसको भी बोलते हैं, जैसे religious views, एक ही चीज़ को उन लोग खाली गॉड को फोकस कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, रेनेसांस के हेल्प से क्या हुआ, गॉड को नहीं लेकिन ह्यूमैनिज्म को उन्होंने फोकस किया।
पॉलिटिकल चेंज भी आया विद द अटैक ऑफ ऑटोमन टर्क्स, सोशल इंस्टीट्यूशन में भी, सोच में भी, सोसाइटी में एक चेंज आया, उन लोग एक वाइड सोच रखने लगे, इसको भी हम लोग रिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। रिफॉर्मेशन बिगेन एज एन अटेम्प्ट बाय द प्रोटेस्टेंट्स टू रिफॉर्म द कैथलिक चर्च। हम लोग देखते हैं कि जो कैथलिक चर्च था, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन लेके आए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में, ये हम देखते हैं, ताकि एक प्रोटेस्टेंट व्यू को एक्सेप्ट करे कैथलिक चर्च। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉज द 16th century religious, political, intellectual and cultural upheaval in Europe that began in Germany under Martin Luther and soon spread to the other parts of Europe. So we know that Catholic जो था वो बहुत सालों साल से चला आ रहा है, लेकिन जब 16th century हुआ तो there was a change और बहुत अपहीविल हुआ था, एक चेंज, एक कल्चरल चेंज आया था। कौन कौन से एरियाज़ में? रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल इन यूरोप, जिस इट स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो वो जर्मनी से हम देखते हैं कि धीरे धीरे इट बिगैन टू स्प्रेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ यूरोप। रिफॉर्मर्स अलॉन्ग विथ मार्टिन लूथर, कैल्विन फ्रॉम फ्रांस, लूथर वी नो ही इज़ फ्रॉम जर्मनी, कैल्विन इज़ फ्रॉम फ्रांस, किंग हेनरी the 8th is from England. They challenged the authority of the people and questioned the authority of the church in interpreting the Bible. What ensued were protests, wars and finally the counter reformation by the रोमन कैथलिक चर्च। तो हम लोग देखते हैं कि एक रिफॉर्मेशन, इन लोग सब क्या है, रिलीजन में एक क्वेश्चन को लाए, रिफॉर्म, एक रिफॉर्मेशन लेकर के आए, जो कि हम लोग देखते हैं कि रेनेसा में एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन भी आया बाय द प्रोटेस्टेंट्स अगेंस्ट द कैथलिक। डेटिंग द रिफॉर्मेशन, हिस्टोरियंस यूजुअली मार्क, क्या डेट है रिफॉर्मेशन का, कब से कब चेंज हो रहा है, तो क्या वो ईयर या डेट है, उसको हम लोग देखेंगे। यूजुअली मार्क द डेट एज 1517 with the publication of Martin Luther's 95 Theses as the beginning of Reformation. The end can be taken as 1555 with the Peace of Augsburg, which allowed Lutheran as well as Catholic churches to coexist in Germany. तो हम लोग क्या है, कैथलिक लोग ही मान रहे थे, अपना एक उनका एक स्टैंड था, लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स आए तो क्या हुआ, एक क्लैश हुआ। यहाँ हम लोग देखते हैं जब मार्टिन लूथर अपना शुरू किया लिखना 95 थीसिस, जो कि 1517 में है, तब हम बोल सकते हैं कि रिफॉर्मेशन स्टार्टेड। जब इसका बुक को पढ़े तो लोग क्या है, फिर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आया, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि रिफॉर्मेशन का डेट है 1517 और एंड हम देखते हैं 1555। तब क्या हुआ था, पीस ऑफ ऑगस्बर्ग, ये एक एग्रीमेंट टाइप साइन हुआ था दोनों पार्टीज़ के द्वारा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि लूथरन मतलब मार्टिन लूथर को जो मानता था, या प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथलिक, दोनों चर्चेस एक संग को एग्जिस्ट, एक संग रह सकते हैं जर्मनी में। तो क्या हुआ, पीस फॉर्म हुआ। नहीं तो जो क्लैश हो रहा था, जो एक क्लैश या लड़ाई हो सकता था, उसको हम लोग देखते हैं पीस ऑफ ऑगस्बर्ग में, वो क्या हुआ, एक मिलाप के समान हो गया। अब हम देखते हैं मार्टिन लूथर के बारे में। ऑलरेडी वी हैव हर्ड अबाउट हिम, 95 थीसिस लिखे थे वो, और वो एक चेंज लेकर के आए थे विद द प्रोटेस्टेंट्स। सो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ऑफ जर्मनी, वी नो दैट was one of the greatest leaders of the Reformation. We can see the image here. वो एक बहुत important leader थे Reformation के लिए. He was born in 1483 in Germany. These years are not so important, पर just we are reading for the sake, but we have to know कि हाँ वो जर्मनी से था, हाँ वो प्रोटेस्टेंट्स के ये में किया था, हक में लड़ा था, 95 थीसिस से स्टार्ट हुआ था डेट ऑफ रिफॉर्मेशन. So that's why Martin Luther is important. But these years are not important, so do not take stress about that. After his university education, he decided to join a monastic order. He began teaching at the University of Wittenberg. Luther was appalled by the corruption in the church and within the clergy. तो हम लोग देखते हैं कि वो अच्छी पढ़ाई किए और उसके बाद मोनेस्ट्री में, मोनेस्टिक ऑर्डर, चर्चेस में जा कर के टीचिंग भी दे रहे थे यूनिवर्सिटी में, और चर्चेस से भी एसोसिएटेड थे. लेकिन जब वो देखे कि चर्च में करप्शन हो रहा है और क्लर्गी, दो हाई क्लास पीपल, उन लोग क्या है अपना मेंटेन करके रख रहे हैं, तो उस चीज़ से उसको क्या हुआ
बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लूथर sparked the Reformation in 1517 by posting his 95 theses on the door of the Castle Church Wittenberg in Germany. The theses were a list of statements that explained Luther's concern about church practices. तो उन्होंने जो ये बुक लिखा इसमें चर्च के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा था, और ये क्या हुआ, एक रिफॉर्मेशन का एज को लेकर के आया। Protestant Reformation. In 1521, Luther was summoned before the Diet of Worms and was excommunicated. With the help from ruler of Saxony, Luther translated the Bible into German and continued to distribute pamphlets with his thoughts in German for the common people to understand. The German people, particularly the peasants, revolted in 1524. By the end of the Reformation, Lutheran churches and Lutheranism was established all over Germany. तो हम लोग देखते हैं कि इसको लूथर को क्या हुआ, क्योंकि वो एक प्रोटेस्टेंट को ले करके आ रहा था अगेंस्ट द कैथलिक, तो उसको बुलाया गया डाइट ऑफ वर्म्स, ये एक कोर्ट के समान रहता है, और वहाँ पर बुलाया गया और उसको बोला गया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है करके। और लेकिन विद द हेल्प ऑफ द रूलर ऑफ सैक्सोनी, एक जगह का रूलर था, उसने क्या किया, बाइबल को ट्रांसलेट किया जर्मन में। हम लोग जानते हैं कि पहले क्या है, ओनली लैटिन लैंग्वेज वाज देयर, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जर्मन जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें वो क्या किए, बाइबल को ट्रांसलेट किया और कॉमन पीपल लोग को, ताकि वो समझ में आ पाए। उसके वजह से हम देखते हैं कि जर्मन पीपल रिवोल्ट भी किए और एक लूथरन चर्चेस आने लगा। इनके सोच के ऊपर, जो प्रोटेस्टेंट सोच के ऊपर था, वैसा चर्चेस भी आने लगा। दिस मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड टू स्विट्ज़रलैंड अंडर उल्रिक ज़्विंगली, टू फ्रांस अंडर जॉन कैल्विन एंड इंग्लैंड अंडर देयर मोनार्क किंग हेनरी VIII। तो ये सब भी लोग हैं जो सिर्फ यूरोप बोलने से सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, स्विट्ज़रलैंड में भी, इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी एक रिफॉर्मेशन आया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। काउंटर रिफॉर्मेशन मतलब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक है, इसको काउंटर करने के लिए और एक रिफॉर्मेशन, इसके अगेंस्ट में और एक रिफॉर्मेशन आया, जो ऑब्वियसली था कैथलिक चर्च के थ्रू। देखते हैं, द कैथलिक चर्च वॉज ए लिटिल स्लो टू रिस्पॉन्ड टू लूथर and the other reformers. The church's response to the threat from Luther is known as the Counter-Reformation of the Church. In 1545, the Church convened the Council of Trent to deal with the issues raised by the Protestants. तो हम लोग देखते हैं कि उन प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट में जो रिफॉर्मेशन आया उसको हम लोग काउंटर रिफॉर्मेशन बोलते हैं। और उन्होंने एक काउंसिल बुलाया, लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाया, काउंसिल ऑफ ट्रेंट जिसे हम बोलते हैं, कि कैसे हम इन प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट में डील कर सकें। उससे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। रिफॉर्म्स ऑफ द काउंसिल ऑफ ट्रेंट, जो ये काउंसिल बैठा उन लोग क्या डिसाइड किए वो देखते हैं। न्यू एडिशन ऑफ द लैटिन बाइबल वॉज इशूड, लैटिन बाइबल का नया एडिशन इंक्लूड हुआ। सेवरल हेरिटिकल बुक्स वेर बैंड, सेल ऑफ चर्च ऑफिसेस वॉज प्रोहिबिटेड, church clergy could not charge any fee for performing religious ceremonies or duties. The clergy was to lead a moral life. तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंजेस लेके आए। जो मार्टिन लूथर ने जो प्रैक्टिस के अगेंस्ट में बोला था कि चर्च लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उसमें चेंज आया। और जो भी पास्टर हैं और जो बड़े लोग हैं उन लोग किसी से भी क्या है, पैसा नहीं मांग सकते हैं अपने काम के लिए। और कुछ बुक्स जो कॉमन लोगों के अगेंस्ट थी वो बुक्स को बैन कर दिया गया, और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए जिसके थ्रू कॉमन लोगों को एक रिलीफ मिल पाया, और प्रोटेस्टेंट्स के हक में था ये कुछ चेंजेस। द मोस्ट रिगोरस प्रोग्राम इन दिस रिगार्ड वॉज सेट अप बाय द सोसाइटी ऑफ जीसस बाय इग्नेटियस ऑफ लॉयला इन 1534। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, द प्रीस्ट्स who belonged to the Society of Jesus were called the Jesuits. By the close of the 16th century, the Roman Catholic Church had regained the faith of the people. Europe was then divided between two forms of Christianity, Catholics and Protestants. फिर हम देखते हैं बहुत बदनामी जो हो चुका था वो धीरे धीरे स्टेप्स वाइज
स्टेप वाइज सोसाइटी ऑफ जीसस बाय इग्नाटियस ऑफ लॉयला, इनके ग्रुप के थ्रू हम देखते हैं धीरे धीरे कैथलिक्स जो थे वो रिगेन कर लिए अपना फेथ पीपल के अमंग में। तो हम देखते हैं कि दो क्रिश्चियनिटी का फॉर्म्स एक संग को एग्जिस्ट किया। पहले भी हम पढ़ चुके हैं द ट्रीटी ऑफ ऑसबर्ग में, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो ये रिफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ ये देखते हैं। द रिफॉर्मेशन हैड ग्रेट पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट। बहुत सारे इम्पैक्ट था। इट रेडिकली चेंज द सोसाइटी, सोसाइटी का जो सोच था उसको वो बहुत अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया। Ancient religious values were set aside and it broke through the barriers of class education. जो एजुकेशन से रिलेटेड था या रिलीजियस वैल्यूज़ था उसको पूरा अलग करे और एक नया क्लास ऑफ एजुकेशन इमर्ज हुआ। Earlier the church governed the politics but after the reformation the king or the government ruled the state. पहले क्या चर्च एक रिलीजन ही रूल कर रहा था पॉलिटिक्स को, लेकिन जब चर्च और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर दिए तो हम देखते हैं कि जो रिफॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं पॉलिटिक्स किंग या फिर गवर्नमेंट के थ्रू रूल होने लगा। इन द realm ऑफ साइंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेनेसांस बट फ्लोरिश ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन। रेनेसांस में हम देखते हैं साइंस या साइंटिफिक डिस्कवरीज जो था, जो इंक्वायरी का स्पिरिट था वो रेनेसां में शुरू हुआ, लेकिन रिफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से फ्लरिश हो पाया, ब्लूम हो पाया। The Reformation brought about the true meaning of individual liberty to follow one's own conscience. रिफॉर्मेशन के द्वारा हम देखते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी, अगर मुझे लगता है ये सही है तो मुझे अपने कंसाइंस के थ्रू चलना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर लिखा है तो मैं ऐसे करूँगी, वहाँ पर नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं। अपना कंसाइंस, अपना स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रीजनिंग यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं। It asserted sovereignty and independence of a nation free from foreign control. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे रिवोल्यूशन भी हम देखते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि लोग जब ज़्यादा पढ़ने लगे, ज़्यादा जानने लगे तो अपना फ्रीडम के बारे में दे गॉट टू नो अबाउट देयर ओन फ्रीडम एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट वो लोग नेशंस, बहुत सारे नेशंस रेनेसांस के बाद रिफॉर्मेशन के टाइम में दे सेपरेटेड फ्रॉम द रूलर्स और फ्रॉम other ruling people and they got their independence from foreign control. Church was divided between Catholics and Protestants, we know that, and rise of national churches led to the rise of nation states with all powers in the hands of the king. तो यहाँ रिलीजन भले ही दो फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, पर हम यहाँ देखते हैं कि स्टेट्स जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर किंग या फिर गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। Economic changes were brought about with the decline of federalism, banking, finance and new ways of trading began and that led to economic growth. तो क्या है, फेडरलिज्म मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर पावर नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हम देखते हैं कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में देयर वर मोर चांसेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके द्वारा हम देखते हैं फाइनेंसिंग, बैंकिंग, ट्रेड ये सब भी फ्लरिश हुआ। Industrial Revolution. The Industrial Revolution began in England in the 18th century and later spread, 18th century को begin हुआ था Industrial Revolution and later spread to the other parts of the world. By harnessing fossil fuels to power engines, factories and machines, the Industrial Revolution transformed the agriculture-based economy into the manufacturing-based economy. तो हम देखते हैं कि कैसा कैसा चेंज आया। हार्नेसिंग फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने लगे इंजन को पावर देने के लिए फैक्ट्रीज़ में और मशीन्स में, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि पहले एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी था, फिर बाद में हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी हो गया। इट डज गिव बर्थ टू द मॉडर्न वर्ल्ड को बर्थ किया। द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज फर्स्टली पॉपुलराइज्ड बाय, विल नोट द नेम, आर्नल्ड टोनीबी, a British economic historian. Toynbee explained the economic development of Britain from 1760 to 1840. The Industrial Revolution, we can see the picture here of Arnold Toynbee, was characterized by the use of steam powered engines. तो क्या हुआ, स्टीम से इंजन चलने लगा।
मशीन्स भी एंड द स्प्रेड ऑफ फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज क्या है, बहुत सारे बनने लगे. द गुड्स वेर मास प्रोड्यूस्ड एंड द मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड. मास प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन एक संग होने लगा और मैकेनिकल वे में ट्रांसपोर्ट होने लगा. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिपेंडेड ऑन मशीन्स सच एस, कौन कौन सा मशीन था, स्टीम इंजन, कॉटन मिल एक्सेट्रा. इट ऑल्सो ब्रॉट अबाउट द रैपिड शिफ्ट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड सिटीज़. विलेजेस से क्या हुआ, टाउन्स और सिटीज़ में शिफ्ट होने लगा. एग्रीकल्चर से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में इकोनॉमी बढ़ने लगा. वाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में क्यों स्टार्ट हुआ. जैसे हम देखते हैं रेनेसांस क्या हुआ, इटली में स्टार्ट हुआ. वैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. द फॉलोइंग रीजंस विल बी नोटेड. द एनक्लोजर मूवमेंट. In the early 18th century, Britain was an agricultural society. Around 80% of farmers had small holdings in rural areas on which they grew and harvested small crops and raised small herds of livestock. Alongside, there were big landlords who could increase the production by introducing machines on land. However, machines could not be introduced on the small strips of land. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 80% क्या थे, फार्मर्स थे ब्रिटेन में, जिन लोग का छोटा छोटा लैंड होल्डिंग्स था और वहाँ पर उन लोग अपना ग्रो करते थे, हार्वेस्ट करते थे और रेज करते थे लाइफ स्टॉक को. अलॉन्ग साइड बिग लैंडलॉर्ड्स भी थे जो लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे मशीन को इंट्रोड्यूस करके. Thus, the need was to consolidate the holdings. The acts passed by the British Parliament allowed the landlords to buy the small strips of land and enclose it with a boundary. Machines were introduced on this enclosed land. As a result, the production increased greatly. Hence, it is often said that revolution in agriculture resulted in the industrial revolution. तो क्या है, बहुत सारे फार्मर्स थे उन लोग का, लेकिन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स था. तो गवर्नमेंट जब एक लॉ निकाला, द लॉ ऑफ एनक्लोजर, द मूवमेंट ऑफ एनक्लोजर, जिसके हिसाब से लैंडलॉर्ड्स को क्या है, लैंडलॉर्ड्स क्या करेंगे, वो सब जैसे अगर 10 फार्मर है यहाँ, उनका स्मॉल 10 लैंड है, तो उन लोग सबसे ख़रीद लेंगे और एनक्लोज कर देंगे एक बाउंड्री से. और ये सब ज़मीन जब एक हो गया तब वहाँ उन लोग क्या करेंगे, मशीन को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द एनक्लोज्ड लैंड. तो प्रोडक्शन भी बढ़ा और एक रिवोल्यूशन या फिर चेंज भी आया. Availability of coal and iron. So coal and iron was something that was plentifully available in Britain during that moment of time. Transportation, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि स्टीम इंजन से हम लोग क्या है, एनर्जी जनरेट कर रहे थे. ओके, स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट. दिस नेम्स विल रिमेंबर बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट. तो विद द हेल्प ऑफ दैट क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हो गया और जहाँ चल के या कार्ट यूज़ करके लोग जाते थे वहाँ बहुत जल्दी फास्टर हो गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टेशन, और एफिशिएंट भी हो गया. वास्ट ओवरसीज मार्केट. ब्रिटेन वॉज अ कॉलोनियल पावर. बहुत सारे कॉलोनीज थे, कैप्चर करके उसको रखे थे. तो हम देखते हैं कि बहुत ह्यूज मार्केट था ब्रिटेन का और उसके हेल्प से उन लोग आराम से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बना सकते थे, जैसे कि इंडिया एंड अफ्रीका. स्टेबल गवर्नमेंट. The stable government in Britain resulted in stability in administration. Traders and manufacturers could work freely. They produced in bulk, marketed their goods abroad, and huge profits were made. This resulted in investment in machinery and further production. तो क्या है, जब स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में तो वहाँ क्या हो रहा है, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो रहा है. उसके वजह से ट्रेडर्स दे कैन फ्रीली ट्रेड और बहुत सारा मतलब रॉ मटेरियल्स भी आराम से एक दूसरी जगह से ला सकते थे. इसके वजह से हम देखते हैं ह्यूज प्रॉफिट हुआ. ह्यूज प्रॉफिट से मोर इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी और उसके बाद और ज़्यादा फिर प्रोडक्शन बढ़ा. तो देयर वाज एन इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ड्यू टू स्टेबल गवर्नमेंट. ब्रिटेन्स प्रॉस्परस मिडिल क्लास. द राइजिंग क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स invested in new business and factories. The merchants also began to sell machine-produced goods in Britain and the rest of the world. तो क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के ब्रिटेन के पॉपुलेशन थे, दे वर बिजनेसमैन, सो दे इन्वेस्टेड इन बिजनेस एंड फैक्ट्रीज. और उसके बाद हम लोग देखते हैं मशीन मेड गुड से सेल करके ब्रिटेन अपने कंट्री को भी दे रहा था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो देयर वॉज मच मोर इंक्रीज इन the revolution and which brought much more productivity.
New inventions. Various inventions took place at the same time which went on to industrialize Britain. Examples we'll just see. Flying shuttle, that was invented by John Kay. Power loom, which was invented by Edmund Cartwright. Spinning jenny, James Hargreaves. Spinning mule, Samuel Crompton. Cotton gin, Elie Whitney. स्टीम इंजन, जेम्स वॉट. तो ये सबसे क्या हुआ, हम लोग का और ज़्यादा काम आसान हो गया. Impact of industrial revolution. The industrial revolution changed, we know, the social and economic structure of Britain, and we'll learn about the following factors. Due to introduction of machines, production increased manifold. The domestic system gave way to the factory system. ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ मशीन के हेल्प से और ज़्यादा उनका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक सिस्टम या एग्रीकल्चरल सिस्टम से शिफ्ट होकर के एक फैक्ट्री सिस्टम आ गया. With industrialization came urbanization, which brought with it new social classes and divisions. Poor working conditions and exploitation led many workers to demand better conditions and political rights. Many philosophers such as Karl Marx and Friedrich Engels supported a rising interest in social revolution which gave rise to socialism. हम लोग देखते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सोशल क्लास में डिवीज़न था कि रिच, पुअर और हाई क्लास लोगों के बीच में डिवीज़न था, और पुअर लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, पुअर वर्कर्स को, जिसके वजह से क्या हुआ, कुछ लोग जैसे कि मार्क्स एंड एंगल्स ये जब आए तो दे ब्रॉट रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन विच वी नो गेव राइज टू सोशलिज्म. There was a dramatic increase in world population throughout Britain and Europe. People moved from rural areas to the growing cities in large numbers. तो हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, ज़्यादा इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से पीपल रूरल एरिया से क्या हुए, शिफ्ट होकर के ग्रोइंग सिटीज़ में जा कर के बस गए. इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर रिड्यूस्ड द राइज ऑफ फेमाइन ड्यू टू क्रॉप फेलियर. एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ, लेकिन क्या, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि फेमाइन और क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा कम हो गया. Imperialism meaning causes and impact. Imperialism means one country's domination of the political, economic and social spheres of another country. In recent times, imperialism has become synonymous with the Western control over the countries of Asia and Africa. Imperial nations gained new territories through treaties and military conquest. The different forms of imperialism are as follows. Imperialism मतलब एक कंट्री डोमिनेट करेगा दूसरे कंट्री को, किस किस बेसिस में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स. और हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में एशिया और अफ्रीका जैसे जगहों में हम देखते हैं कि ज़्यादा इम्पेरियलिज्म हुआ है. अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इम्पेरियलिज्म. कॉलोनी, ए टेरिटरी दैट एन इम्पेरियल पावर रूल्ड डायरेक्टली थ्रू कॉलोनियल ऑफिशियल्स. जैसे मैं अगर ये एक जगह है, वो एक कॉलोनी है और मैं यहाँ पर उसकी रूलर हूँ, तो मैं क्या है, अपने लोगों को यहाँ पर रखूँगी और डायरेक्ट रूल करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई ओन पीपल. That is known as colony. Protectorate had its own government but its policies were guided by a foreign power. जैसे ये मेरा ही जगह है और मैं ही इसको रूल कर रही हूँ, लेकिन पॉलिसीज़ क्या होगा, फॉरेन पावर. इंडिया नहीं, प्रोटेक्टोरेट, इंडिया का ऐसे नहीं था, इंडिया एक कॉलोनी था. प्रोटेक्टोरेट का हम देखते हैं कि पूरा रूल वो खुद करेंगे, लेकिन खाली पॉलिसीज़ जो होगा फॉरेन पावर का होगा. स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, a region of a country in which the imperial power has exclusive trading rights. और कुछ नहीं, पर सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स रहेगा. तो कहाँ से ट्रेड करोगे, कैसे करोगे, कितना परसेंटेज हम लोग रखेंगे, वो सब उस फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड करता था. There were three main factors for the rise of imperialism in 1800s which are explained as follows. The Industrial Revolution created a great demand for raw materials and expanded markets and pushed the newly industrialized countries to seek more and more colonies. The imperialist countries also needed cheap labor from their colonies. Therefore, they required a strong military to protect their economic interests. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था,
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अपना मार्केट। हर चीज़ तो मेरे यहाँ नहीं मिलेगा, मुझे दूसरे कंट्री से भी मिलेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, ढेर सारे कंट्री लोग और ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाएंगे, ताकि हम लोग को चीप में लेबर भी मिलेगा और बहुत सस्ते में हम लोग को रॉ मटेरियल्स भी मिलेगा, और हम लोग और ज़्यादा दूसरे कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। ये हम लोग देखते हैं कि इसके वजह से और ज़्यादा इंपेरियलिज्म राइज हुआ, और ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाने लगे। Therefore, they required a strong military to protect their economic interests, जिसके वजह से strong military भी आया। Nationalist fervor also prompted the rival European countries to compete with each other and scramble for new colonies। तो हम लोग देखते हैं कि यूरोप ज़्यादातर वो कंट्रीज़ था, यूरोपियन कंट्रीज़ जो कॉलोनीज़ बना रहा था, और हम लोग देखते हैं कि यूरोप में ढेर सारे कंट्रीज़ हैं, तो उन लोग एक दूसरे से फिर एक कंपटीशन टाइप होने लगा कि नया कॉलोनीज़ को हम लोग और कैसे एनेक्स करें। Imperialists were driven by religious fervor and feelings of racial and cultural superiority, which inspired them to impose their religion and culture on their colonies। तो उन लोग का एक रिलीजियस व्यूज़ था, और रेशियल और कल्चरल वाइज उन लोग सोचते थे कि हम लोग इन लोग से सुपीरियर हैं, और अपना रिलीजन को उन लोग क्या करते थे, अपने कॉलोनीज़ में इम्पोज करना मांगते थे। इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म ऑन साउथ एशियन कंट्रीज़। साउथ एशियन कंट्रीज़ में क्या इम्पेरियलिज्म था, ये हम लोग जनरल में देखें। द यूरोपियन पावर्स बिगैन टू एक्सप्लोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन एशियाज इन 1500s। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच इमर्ज्ड एज द मेजर राइवल फॉर कंट्रोल ऑफ द ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में हम लोग देखते हैं दो मेन ओपोनेंट्स थे, ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। द ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच in 1760 and subsequently expanded their territory in India through wars, diplomacy and commercial activities। इन लोग दोनों राइवल थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ओवर पावर किया फ्रेंच को, और इंडिया का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। द ब्रिटिश ऑल्सो मेड इनरोड्स इनटू बर्मा इन 1820s। ओवर द नेक्स्ट 60 years दे गेन्ड फुल कंट्रोल ओवर बर्मा। 1820s को स्टार्ट किया और धीरे धीरे बर्मा को फुल्ली कंट्रोल करने लगे। मालदीव्स को भी उन लोग एक प्रोटेक्टरेट के हिसाब से रखे थे, मतलब दे वर रूलिंग देयर ओन, लेकिन दे वर गाइडेड बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज़ वहाँ पर चल रहा था। और इसके थ्रू हम लोग देखते हैं ट्रेड रूट्स हुआ यूरोप और अफ्रीका तक। सिलोन, नाउ श्रीलंका, वॉज फर्स्ट कंट्रोल्ड बाय द पोर्चुगीज एंड लेटर द डच विच टुक इट ओवर। द डच सरेंडर्ड इट टू द ब्रिटिश इन 1802। सेलोन वॉज मेड एन ऑफिशियल ब्रिटिश कॉलोनी। धीरे से क्या हुआ, पहले पोर्चुगीज़ रूल करते, फिर डच, और फिर धीरे से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश लोग उसको रूल करने लगे। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म्स आर समराइज्ड एंड गिवन इन द नेक्स्ट पेज। हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव भी देखते हैं और नेगेटिव भी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर। देर आर एक्सरसाइजेस हियर, यू कैन गो थ्रू दिस and you can solve these problems. Thank you for attending the class.